Students, now I have brought for you the most important problems. Draw energy level diagram for hydrogen atom. यानी हमको जो है एक एनर्जी लेवल डायग्राम को ड्रॉ करना है हाइड्रोजन एटम के लिए. We know very well initially any atom has its definite energy state. Okay. Normally electron in the atom has the lowest energy level, and in this state the atom is said in ground state. Okay. When from outsource an appropriate energy gets, the electron jumps to some higher energy level, and there it stays up to a very short time, 10 to the power minus 8 second, and after this time in time interval it comes to back, and during coming back it emits energy in the form of electromagnetic wave, which is equal to the energy of difference of both the energy level. Okay. Now, according to Bohr's atomic model, atomic मॉडल, बोर के एटॉमिक मॉडल के हिसाब से क्या होगा भाई? The nth energy of any atom nth orbit of any hydrogen like atom, हाइड्रोजन लाइक एटम से देखिए, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन, भाई एक ही ऑर्बिट होती है उसके न्यूक्लियस कह रहा हूं, उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन में. ओके. और हाइड्रोजन लाइक एटम से सेंस ये है कि कोई भी एटम हो, अनदर एटम ऑफ एलिमेंट जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन हो, यानी एक ही इलेक्ट्रॉन उसमें रिमेन रहे, तो उन एटम के लिए बोर ने एक नियम रूल दिया था, यानी एनर्जी के लिए क्या दिया था? एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ एनी हाइड्रोजन लाइक एटम क्या होता है? En इज इक्वल टू माइनस RH अपॉन n स्क्वायर इंटू Z स्क्वायर. व्हाट इज Z? Z is atomic number. Z क्या है? एटॉमिक नंबर है. R क्या है? रिडबर्ग कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है 1.097 इंटू 10 टू द पावर 7 पर मीटर, अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंट. पर मीटर रिडबर्ग कांस्टेंट. एंड व्हाट इज H? H इज क्या? प्लैंक्स यूनिवर्सल कांस्टेंट.
universal constant, and its value is 6.6 into 10 to the power minus 34 joule second. Joule second. And what is C? C is the speed of light. Speed of light. And its value is 3 into 10 to the power 8 meter per second. 2.98 होता है into 10 पर 8, लेकिन इसको अप्रॉक्स में 3 ही लिखेंगे. 3 into 10 to the power 8 meter per second. What is n? N is the quantum number. Quantum number. ठीक, तो ये समझ में आ गया. तो फॉर एनी एटम, हाइड्रोजन, एनी हाइड्रोजन लाइक एटम, एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट इज minus RHC upon n square into z square. समझ में आ गया होगा आपको अच्छे तरीके से. ठीक, चलिए इसको रफ करें. इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आया? बोलिए, आ गया? रफ करें? चलिए रफ करते हैं. रफ करते हैं इसको रफ. समझते रहिएगा. हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ठीक. When atom gets energy from outside source, then it becomes in the excited state. यानी ग्राउंड स्टेट से ये एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है. तो सपोज कीजिए कि इनिशियली ग्राउंड स्टेट, द एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट क्या होगी भाई? इन ग्राउंड स्टेट E1 है, मतलब एनर्जी कितनी है? E1. सपोज ये क्या ग्राउंड स्टेट है? ग्राउंड स्टेट एनर्जी. ठीक, और ये एक्साइटेड स्टेट आती है. मान लिया ये एक्साइटेड स्टेट एनर्जी. ठीक है, तो डिफरेंस क्या हो भाई? डेल्टा E इज इक्वल टू E2 माइनस E1. यानी जब हायर यानी एक्साइटेड एनर्जी स्टेट से वो ग्राउंड स्टेट में आता है तो एनर्जी का एमिशन करता है. और सपोज कीजिए कि एमिटेड फोटॉन की जो एनर्जी है वो आती है h न्यू. कितनी होती है? h न्यू. और न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन and h is the Planck's universal constant. It can also be written hc upon lambda. Delta E is equal to hc upon lambda. Okay, where lambda is equal to hc upon delta E. This is the wavelength of emitted energy. This is the wavelength of emitted energy. Now generally, in general, if the first energy level is n1 and the other energy level, higher energy level is n2, then wavelength 1 upon, if first energy level is n1 and higher energy level is n2, then wavelength of emitted energy can be obtained in this also form. 1 upon lambda is equal to R 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square, where R is the Rydberg constant. Okay, n1 is the initial energy level
and N2 is the final energy level, and lambda is the wavelength of emitted energy during returning from N2 energy level to N1 energy level. यानी N2 energy level से जब N1 energy level में आता है तो जो emitted energy है उसकी wavelength lambda है. समझ में आ गई? R क्या है? रेडबर्ग कांस्टेंट. तो इतना तो आपको क्लियर हुआ. अब देखिए आपको होता है कि ड्यूरिंग रिटर्निंग फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल. देखिए एक बात ये भी समझ लीजिए कि डायरेक्टली भी वो एनर्जी लेवल में आ सकता है लोवेस्ट एनर्जी लेवल में, या पासिंग थ्रू सम लोअर एनर्जी लेवल, यानी जो कम एनर्जी लेवल से होते हुए आ सकता है, डायरेक्ट भी आ सकता है, और या पासिंग थ्रू द एनर्जी लोअर, यानी ये एनर्जी लोअर जो लोअर एनर्जी लेवल है उनसे होते हुए भी आ सकता है. समझ में बात है कि नहीं? नहीं, इसको हम तो लिख देते हैं. तो ये फॉर्मूला समझ में आ गया. इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे हम सीरीज को ऑब्टेन करने में, सीरीज को बताने में, सीरीज को डिस्क्राइब जब करेंगे तो इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे. ओके, इतना समझ में आ गया? रफ करें, बोलिए, इतना समझ में आ गया है? ठीक. तो when atom gets energy from outside source, then it is in excited state and the electron jumps to some higher energy level, and there it stays only for short time, 10 to the power -8 सेकेंड. कितना होता है? 10 to the power -8 सेकेंड तक वहां ठहरता है हायर एनर्जी लेवल में, और इसके बाद क्या होता है कि इतने सेकंड के बाद वो वापस लौटता है. तो जब वो रिटर्न करता है तो ड्यूरिंग रिटर्निंग यानी रिटर्न लौटने के दौरान इधर इट डायरेक्टली कम्स टू ग्राउंड स्टेट और पासिंग थ्रू सम लोअर एनर्जी लेवल एंड देन कम्स टू लोएस्ट एनर्जी लेवल, ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल में आता है. तो ये समझ में आ गई है आपको? अच्छी समझ में आएगी. अच्छा, अब आप यहां पे समझिए, ड्यूरिंग रिटर्निंग फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल इट एमिट्स एनर्जी एंड ऑब्टेन्ड स्पेक्ट्रल लाइंस. जो स्पेक्ट्रल लाइंस होती जो ऑब्टेन्ड होती हैं, तो जो ऑब्टेन्ड स्पेक्ट्रल लाइंस के जो ग्रुप होता है उनको बोलते हैं हम सीरीज. क्या बोलते हैं? सीरीज. When atom gets energy from out source, यानी एनर्जी पाता है आउट सोर्स से, then it is in the excited state. excited state वो एक्साइटेड स्टेट में आता है. एंड इलेक्ट्रॉन इन द एटम, इलेक्ट्रॉन इन द एटम jumps to some higher energy level, higher energy level, sums to higher energy level. There it stays माने ठहरना. There it stays up to a short time, 10 to the power -8 second, and then
it comes back. During coming back, it emits energy in the form of electromagnetic wave. Electromagnetic wave. Wave. जो emitted spectral lines है, a group of emitted spectral lines is called series. Are called सीरीज. इनको सीरीज कहा जाता है. तो हम ये बता चुके हैं कि जब वो रिटर्न होते हैं तो जो एमिटेड स्पेक्ट्रल लाइंस होती है लाइन स्पेक्ट्रम होती है. कैसी होती है? लाइन स्पेक्ट्रम होती है. एक डेफिनिट फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ ऑब्टेन होता है बिटवीन टू एनर्जी लेवल. तो अगर डार्क ग्राउंड पे देखा जाए तो लाइन को जो है आराम मतलब सेपरेट किया जा सकता है. सेपरेटेड होती है लाइन. ठीक है. तो एमिटेड स्पेक्ट्रल लाइंस आर कॉल्ड सीरीज. अब पहली चीज क्या है, हेडिंग ऊपर लेंगे. जो सीरीज भी कई तरह की होती है, लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, ये साइंटिस्ट के नाम पर ही है जिन्होंने इसको एक्सप्लेन किया था. ओके, इतना नोट कर लिया? बोलिए, इतना नोट कर लिया? रफ करें? तो अब हम पहले हेडिंग डाल रहे हैं लाइमन सीरीज. पहले क्या है? लाइमन सीरीज. When atom gets energy from outside source, then atom is in the excited state. In the excited state, when electron comes back from some higher energy level to first energy level, then emitted spectral lines are obtained in ultraviolet region, and this series of lines is known as Lyman series. देखिए आपको समझ में आ जाएगा. इन द एक्साइटेड स्टेट when in the excited state when electron comes back from higher energy level to first energy level. First energy level. Then emitted spectral lines. Then the emitted spectral lines are obtained
in ultraviolet region. Ultraviolet region. And this series of spectral lines, this series of spectral lines is called Lyman series. इनको क्या कहते हैं? लाइमन सीरीज कहा जाता है। ठीक, समझ में आया? अब इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, देखिए यहां पर देखिए इनिशियली तो n1 बराबर तो है 1 और n2 यहां पर हो सकता है 2 3 4 एंड सो ऑन। तो 1 अपॉन लैम्डा जो होगा इज इक्वल टू कैपिटल R रिडबर्ग कांस्टेंट है 1 अपॉन n1 स्क्वायर, भाई फॉर्मूला तो n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर, यही तो फॉर्मूला है। तो लाइमन सीरीज के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा? 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू R 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर, वेयर n इज इक्वल टू 2, यानी सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहा हो, या थर्ड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहा हो, या 4 ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहा हो। तो इस तरह की वेवलेंथ जब सेकंड से आएगा तो एक वेवलेंथ मिलेगी, और फिर थर्ड से आएगा फर्स्ट में तब एक वेवलेंथ मिलेगी, जब फोर्थ से आएगा फर्स्ट में तो एक वेवलेंथ मिलेगी। तो इस तरह से अलग अलग लाइन मिलेगी हमको। तो इनके ग्रुप को हम क्या कहेंगे? सीरीज कहा जाएगा, और इस सीरीज को कहेंगे लाइमन सीरीज। और आपको मालूम होना चाहिए स्पेक्ट्रम क्या है। स्पेक्ट्रम इज द अरेंजमेंट ऑफ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। एक रेगुलर अरेंजमेंट हो फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ का, और डार्क साइड यानी डार्क बैकग्राउंड पर हो, डार्क बैकग्राउंड पर, तो इसको कहते हैं स्पेक्ट्रम। इसको क्या बोलेंगे? स्पेक्ट्रम। तो एक अरेंजमेंट है स्पेक्ट्रम, ठीक है, एक ऑर्डरली या रेगुलर, ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ वेवलेंथ। जैसे पहले थोड़ी कम, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, इस तरह का एक लाइन का एक ग्रुप मिल जाए तो उसको कहेंगे स्पेक्ट्रम। क्या कहेंगे? स्पेक्ट्रम। तो ये समझ में आ गया आपको अच्छी तरीके से। तो ये 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू R ये। अच्छा, 1 अपॉन लैम्डा तो समझा ही गया, जिससे भी आपका n हो गया। तो ये आपके लाइमन सीरीज हो गई। साइंटिस्ट थे लाइमन जिन्होंने इसको जो है एक्सप्लेन किया था, इसलिए उन्हीं के नाम पर, उनके ऑनर के नाम, उन्हीं के ऑनर पर इसका नाम रखा गया लाइमन सीरीज। तो ये समझ में आ गया होगा। अब यहां पर अगर n बराबर 2 कहें तो हमें मैक्सिमम वेवलेंथ ऑब्टेन होगी, और अगर n की जगह पर इंफिनिटी कर दें तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ यानी एक सीरीज, एक लिमिट मालूम हो जाएगी, सीरीज लिमिट ऑब्टेन होगी। समझ में आता है कि नहीं? फॉर मैक्सिमम वेवलेंथ n इज इक्वल टू 2, फॉर मिनिमम या लिमिटिंग, लिमिट के लिए क्या, यानी यानी सीरीज लिमिट के लिए अगर देखा जाए तो उसके लिए इन्फिनिटी रखेंगे, वो शॉर्टेस्ट होगी वेवलेंथ। क्या होगी? शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। समझ में आता है? हो गई? इसको रफ करें, रफ। देखिए, अब इसी में अगर n1 तो आपका 1 है, चलिए ठीक, n2 बराबर 2 हो तो ये आपका क्या मिलेगा? 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 1 अपॉन R, 1 अपॉन R स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 स्क्वायर। तो ये मैक्सिमम वेवलेंथ होगा। ये क्या होगी? मैक्सिमम। और अब यहां पर अगर यहाँ 1 अपॉन, यानी इफ n1 बराबर 1 और n2 बराबर इन्फिनिटी हो तो यहाँ पर 1 अपॉन लैम्डा, ये 1 R, ये रिडबर्ग कांस्टेंट 1 अपॉन R स्क्वायर माइनस ये 1 अपॉन L लैम्डा, ये इन्फिनिटी। तो यहाँ पर ये होगा, ये मिनिमम वेवलेंथ होगी, यानी ये सीरीज लिमिट होगी, ठीक है। इसको कहेंगे, ये लैम्डा यहाँ पे होगी मिनिमम, ये सीरीज लिमिट पे कह सकते हो।
ये लिमिट भी होगी, ये लिमिट हो जाएगी। तो अब समझ में आ गया, ये तो लाइमन सीरीज हो गई। ठीक, अब आइए बामर सीरीज, दूसरी क्या है, बामर सीरीज। अगली रीडिंग क्या है भाई, बामर सीरीज, बामर सीरीज, बामर सीरीज। बामर सीरीज में क्या होता है, when electron comes back from higher energy level to second orbit, second energy level, in the excited state, when electron comes back from higher energy level to second or energy level, second energy level, जब सेकंड एनर्जी लेवल में आता है हायर एनर्जी लेवल से, तो जो स्पेक्ट्रल लाइंस मिलती है वो विजिबल रीजन में ऑब्टेन होती है। देन एमिटेड स्पेक्ट्रल लाइंस are obtained in visible region, ये विजुअल रीजन में ऑब्टेन होती है। आगे समझिए, सच सीरीज ऑफ लाइन्स such series of lines is known as Balmer series. Balmer series. इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, 1/λ इक्वल टू r 1/2 का स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, वेयर n इज इक्वल टू 3, 4, 5 एंड सो ऑन। ठीक, इन्फिनिटी, अप टू इन्फिनिटी कह सकते हैं। समझ में आई बात की नहीं? तो ये यानी थर्ड ऑर्बिट से अगर सेकंड ऑर्बिट में आ रही है, यानी थर्ड एनर्जी लेवल से सेकंड एनर्जी लेवल में अगर रिटर्न हो रहा है इलेक्ट्रॉन, तो उस टाइम पर जो एमिटेड जो वेवलेंथ होगी वो मैक्सिमम होगी। वो कैसी होगी, मैक्सिमम होगी। तो समझ गए, 3 से जब सेकंड ऑर्बिट में आएगी तो एमिटेड जो वेवलेंथ होगी एमिटेड वेवलेंथ मैक्सिमम होगी, ये मैक्सिमम। और जब इंफिनिटी से सेकंड में आएंगी तो यहां पर मिनिमम होगी, यानी मिनिमम मतलब ये लिमिटिंग आ जाएगी, सीरीज लिमिट होगी, मिनिमम वेवलेंथ होगी, मिनिमम वेवलेंथ, ये मिनिमम वेवलेंथ यानी सीरीज लिमिट होगी, सीरीज लिमिट होगी। तो समझ में आ गया आपको? तो ये भी आपका हो गया बामर सीरीज, ये बामर सीरीज। अब आइए पाश्चन सीरीज, पाश्चन सीरीज। पाश्चन सीरीज देखिए, पाश्चन सीरीज। पाश्चन सीरीज पाश्चन सीरीज में क्या है भाई, व्हेन इलेक्ट्रॉन comes back
from higher energy level, higher energy level to third energy level, third energy level, then emitted spectral lines are obtained in infrared region, in infrared region। ठीक, तो अब ये देखिए, such series is known as Paschen series, such series is known as Paschen series। यानी इसका लिए फॉर्मूला क्या होगा, 1/लैम्डा रेट पर कांस्टेंट 1/3 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, वेयर n इज इक्वल टू 4, 5, 6 एंड सो ऑन एंड अप टू इंफिनिटी। यानी 4 ऑर्बिट से 4 एनर्जी लेवल से थर्ड एनर्जी लेवल पर अगर रिटर्न हो रहा है इलेक्ट्रॉन, तो जो एमिटेड एनर्जी होगी, एनर्जी की वेवलेंथ होगी, वो वेवलेंथ जो होगी मैक्सिमम होगी। ठीक, और जो इन्फिनिटी से डायरेक्टली ग्राउंड थर्ड लेवल पे आ रहा, थर्ड एनर्जी लेवल पे आ रहा, तो जो एमिटेड वेवलेंथ होगी एनर्जी की, एमिटेड एनर्जी तो मैक्सिमम होगी और उसकी वेवलेंथ मिनिमम होगी। समझ में आई बात? और उसको हम सीरीज लिमिट कहेंगे। ठीक, तो यानी 4 से जब थर्ड एनर्जी लेवल में आएगा तो मैक्सिमम वेवलेंथ, और जब इन्फिनिटी से थर्ड पे आएगा तो मिनिमम एनर्जी, मिनिमम वेवलेंथ, यानी सीरीज लिमिट होगी वो, सीरीज वेवलेंथ ऑफ सीरीज लिमिट, ये सीरीज लिमिट होता है। आ गया समझे, पास्चन में हो गया। अब ब्रैकेट देखिए, ब्रैकेट में क्या होगा, ब्रैकेट सीरीज, ब्रैकेट सीरीज ब्रैकेट सीरीज ब्रैकेट सीरीज में क्या है, व्हेन इलेक्ट्रॉन कम्स फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू फोर्थ एनर्जी लेवल, यानी 1/लैम्डा इज इक्वल टू आर रेडियल कांस्टेंट 1/4 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, वेयर n is equal to 5, 4, 6 एंड सो ऑन। यानी कहां से फिफ्थ एनर्जी लेवल से 4 पे आइए, या 6 एनर्जी लेवल से 4 पे आए, 7 एनर्जी लेवल से 4 पे आए, तो इस मतलब जब एनर्जी लेवल आएगा तो अलग अलग वेवलेंथ मिलती जाएगी। तो जो एक सीरीज मिलेगी, एक ग्रुप ऑफ लाइंस की जो सीरीज मिलेगी, ऐसी सीरीज को हम कहते हैं ब्रैकेट सीरीज। क्या कहते हैं, ब्रैकेट सीरीज। और जब 5 एनर्जी लेवल से 4 पे आएगी तो मैक्सिमम वेवलेंथ मिलेगी, मैक्सिमम वेवलेंथ, और जब इन्फिनिटी से 4 पे आएगी तो मिनिमम वेवलेंथ, मिनिमम वेवलेंथ मिलेगी। इसको सीरीज लिमिट बोलते हैं, ब्रैकेट सीरीज की सीरीज लिमिट। ये सीरीज लिमिट हो जाएगी। अब आइए इसके बाद लास्ट है फुंड सीरीज। लास्ट है क्या, फुंड सीरीज। देखिए फुंड सीरीज देख लीजिए आप, फुंड सीरीज PFU एंड फुंड सीरीज। इसमें क्या है भाई, जो हायर एनर्जी लेवल से वो फिफ्थ एनर्जी लेवल पे आए, तो एमिटेड जो वेवलेंथ मिलेगी वो इस फॉर्मूले मिलेगी, इस फॉर्मूले से ऑब्टेन्ड होगी, इस फॉर्मूले से
1/5² minus 1/n², where n is equal to 6, 7, 8 and so, यानी 6 ऑर्बिट से अगर 5 ऑर्बिट में आती है, 7 से 5 में आती है, तो अलग अलग वेवलेंथ मिलेगी। इस तरह से अलग अलग स्पेक्ट्रल लाइन मिलेगी। इस स्पेक्ट्रल लाइन के जो ग्रुप होगा उसको हम सीरीज बोलते हैं। ऐसी सीरीज को हम कहते हैं फुंड सीरीज। क्या बोलते हैं? फुंड सीरीज। और जब 6 से 5th एनर्जी लेवल में आता है तो मैक्सिमम वेवलेंथ मिलेगी, मैक्सिमम वेवलेंथ। और जब इन्फिनिटी से 5th में आएंगे तो मिनिमम वेवलेंथ मिलेगी। मिनिमम वेवलेंथ यानी मैक्सिमम एनर्जी होगी, एक तरह से समझिए। तो मिनिमम वेवलेंथ क्या, ये सीरीज लिमिट कराती है, सीरीज लिमिट कराती है। तो आप समझ गए होंगे ये। तो इस तरीके से ये सीरीज आप तैयार कर लीजिए, एग्जाम में स्पेक्ट्रल लाइन्स आएगा। अब इसका देखिए डायग्राम कैसे बनाते हैं, ये भी बता दें। डायग्राम देखिए, डायग्राम देख लीजिए। डायग्राम देखिए, गैपिंग कम करते जाइए। ये पहले ज़्यादा फिर इससे कम है, इससे कम कीजिए, फिर और कम कीजिए। ये तो हो गई फर्स्ट, ये मतलब 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई। ऐसे कम कर दीजिए, ठीक। यहाँ पे जो E1 आएगी एनर्जी लेवल माइनस RSC/1 रहेगा, 1 का स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे E2 है एनर्जी लेवल में, तो ये आएगा माइनस RSC/2 का स्क्वायर। यहाँ Z इक्वल टू 1 है, यहाँ भी Z इक्वल टू 1 हाइड्रोजन एटम के लिए है ना। फॉर हाइड्रोजन एटम, फॉर हाइड्रोजन एटम, फॉर हाइड्रोजन एटम Z इक्वल टू 1, ठीक। तो अब देखिए, जब जो एमिटेड स्पेक्ट्रल लाइंस ऐसे दिखेंगे, सेकंड से फर्स्ट में ये लाइमन मिल रही, थर्ड से फर्स्ट में, फोर्थ से फर्स्ट में, 5th एनर्जी लेवल से फर्स्ट में, 6 से फर्स्ट में, 7 से फर्स्ट में। तो यहाँ पे लाइमन मिलेगी, लाइमन सीरीज मिलेगी, ये इस तरह से सीरीज मिलेगी। आप सेकेंड ऑर्बिट देखिए, हायर थर्ड से सेकंड, फोर्थ से सेकंड, 5th से सेकंड, 6 से सेकंड, ये 6 हो गई और ये बराबर 7, ठीक। और ये 7 से सेकंड, तो यहाँ मिलेगी बामर सीरीज, बामर सीरीज, ठीक। अब आइए थर्ड पे देखिए, थर्ड पर 4 से थर्ड पर, 5th से थर्ड पर, 6 से थर्ड पर, 7 से थर्ड पर, तो यहाँ मिलेगी पास्चन, पास्चन सीरीज। अब आइए 4 पर, 5th से 4 पर, 6 से 4 पर, 7 से 4 पर एंड सो ऑन। तो यहाँ मिलेगी और भी आएगी इन्फिनिटी तक। तो ये आएगी आपके ऐसे, बहुत सी ऐसे ऐसे आते जाएंगी और ये इन्फिनिटी ऐसे 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 आती जाएंगी, ये इन्फिनिटी तक हो जाएगा। और इन्फिनिटी की एनर्जी क्या होती है? 0 होती है। इन्फिनिटी कितना होगा? 0 होगा एनर्जी। तो ये समझ लीजिए। तो ये आपका आ गया ब्रैकेट, ब्रैकेट सीरीज। अब आएगी 5th, ये आया 6 से 5th में और 7 से 5th में, ऐसे ही आते जाएंगे, ऐसे आते जाएंगे। ये आपका आ गया फुंड सीरीज, फुंड। तो दिस इज द एनर्जी लेवल, डायग्राम ऑफ एनर्जी लेवल ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये तय कर लीजिएगा, ओके।
expect, I hope that you will prepare this topic very clearly, and so far as my knowledge is concerned, this topic may be asked in the board examination which will be held recently in February, and I pray to God for your success in the board examination, and also I pray to God that you may secure very good marks, very good marks in the board examination. Okay, आप इसको आप तैयार कर लीजिएगा। इफ अगर आप जो न्यू कमर हैं, नए हमारे देखने वाले हैं वीडियो, तो वो सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें। और इफ़ यू have any problem in this topic for understanding, then you will tell me through the comment, and I shall try my best to solve your problem. Okay.